Welcome students. Hi, this is Neha Bhatia and this video is for class 11 commerce students journal entries part 3. But before this, don't forget to see part 1 and 2 in which I have explained all the basics of journal entries, rules of debit and credit and GST transactions. And in this part 3, the last video of journal entries, we will study some more types of entry and first I have taken opening entry. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री. अभी तक जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं टिल नाउ यू विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्वेश्चंस यू हैव स्टडीड दैट आर दैट ए बी सी लिमिटेड और ए कंपनी हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप एंट्रीज का जो क्वेश्चन करेंगे वो एक बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा है तभी आप उसका जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें ओपनिंग एंट्री दी हुई हो. ओपनिंग एंट्री मतलब वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है और अब आपको बीच में से कोई उसका फाइनेंशियल ईयर दिया गया है जिसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है एंड दैट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो हैज सम बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर. सपोज मैं आपको एक बेसिक जर्नल में समझा देती हूँ. वो क्या होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया सपोज 2015 में. आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियली ईयर वाइज 2016, देन 16 to 17, देन 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20. अब आपके पास आया है जो क्वेश्चन वो 20 to 21 सेशन का है और आप एंड यू आर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन्स. सो इफ यू हैव स्टार्टेड रुपीज 1 lakh, you have started your business with rupees 1 lakh cash. But it doesn't mean that this cash will be the same in financial year 2021. इसमें से कुछ स्पेंड भी हुआ है, कुछ आया भी है, जो भी है. जैसे मशीनरी की वैल्यू उस टाइम आपकी 50,000 थी, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा तो उसकी वैल्यू में भी लैक आ रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यूसेज. सो by which asset you started the business and after starting the business you earn some liabilities also and so many things which values will be changed till 2021. तो अब क्या है, आपके पास स्टार्टअप बिजनेस नहीं है, आपके पास क्या है, बीच का फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए आपके पास हर चीज़ के बैलेंसेस होंगे. अब हमारे पास कैश कितना बचा है, स्टॉक कितना बचा है, कितने डेटर्स हैं पिछले साल के, कितने क्रेडिटर्स हैं पिछले साल के. सो लास्ट ईयर बैलेंसेस यू विल हैव एंड लास्ट ईयर बैलेंसेस एंट्री जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं स्टार्टिंग में, दैट एंट्री इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री. सो लेट्स स्टार्ट. I will give you a simple example. Opening entry. So we will take, just now I told you that balances of last year. So we will take some balances of last year. That cash rupees 50,000 and stock 30,000. Then you have balance in bank also rupees 70,000. You have machinery and the value of machinery is left is 20,000. Then you have a debtor name with A and that value is rupees 5,000. Okay. Then you have a creditor with name B, rupees 70,000. Okay. And you have a loan rupees 1 lakh. Fine. So these balances you have of last year, but when you are starting a new financial year entries, so you have to record these balances also. So how to record? Combined entry होती है and that entry will be called opening entry. So you know that all assets debit and all liabilities credit. Simple है ना, कुछ नहीं है प्रॉब्लम. तो जितनी भी assets है हमारे पास इसमें उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करेंगे. सो ऑल एसेट्स डेबिट, दिस 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 एंड दिस, दीज ऑल आर दी एसेट्स. कैश, स्टॉक, बैंक, मशीनरी एंड डेटर, ऑल आर एसेट्स. सो जस्ट स्टार्ट. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, देन मशीनरी debit and A's account debit and then
liabilities credit. Yes, to B's account and to loan account. Yes. Now we will write the amounts. 50,000, bank 70,000, then stock 30, machinery 20 and debtor 5, B's creditor 70 and loan 1 lakh. But entry is completed, not fully completed. Why? Because you know already that debit and credit side total should be equal. Yes. So अब हम totaling करेंगे 50 plus 70 1,20,000, then 1,50,000, then 1,70,000 and 1,75,000. Total of debit side is coming 1,75,000. Yes, and total of credit side is coming 1,70,000. So how to do it? How to do the same totaling both side? तो अब हमें आपको बताना है कि कौन से साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का. तो जिस भी साइड का टोटल कम होता है उस साइड बैलेंस होता है, बैलेंसिंग फिगर आएगी. उस साइड क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंसिंग फिगर आपको क्लियरली पता चल रहा है किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी. हम दोबारा से टोटलिंग कर लेते हैं. 7 और 5 120, देन 150, देन 170. यस, बैलेंसिंग फिगर विल बी क्रेडिट साइड. तो उसके लिए हम उसको लिखते हैं कैपिटल, कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसके लिए लेफ्ट है? कैपिटल 5000. और आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर. इससे हमारी कैपिटल निकल के आई है कि हमारे बिजनेस में जो अभी भी कैपिटल रह गई है, मीन्स अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी विच इज ऑल टिल नाउ इट इज लेफ्ट इन द बिजनेस, दैट इज ₹5,000, जो ओनर के लिए होती है. इफ सपोज डेबिट साइड बैलेंस इज देयर, उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. कैसे ले लेते हैं हम? यहाँ पे इसकी वैल्यू कर लेते हैं बैंक की 60,000 या 50 कर लेते हैं. नाउ व्हाट विल बी द टोटल ऑफ डेबिट साइड? 50 50 1 lakh, then 1,50,000, 1,55,000, and the totaling of credit side is 1,70,000. So you can see that balancing figure will come at debit side. यहाँ आएगी बैलेंसिंग फिगर. कितनी आएगी? 15,000. अगर डेबिट साइड में आ रही है बैलेंसिंग फिगर तो वो किस नेम से जाएगी? वो जाएगी गुडविल के नेम से, क्योंकि कैपिटल तो डेबिट नहीं होती है. तो जो आपका इसका मतलब एक्स्ट्रा है वो क्या है? गुडविल है, जो आपको दिखाई नहीं देती. इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स विच यू कैन नॉट सी और विच यू कैन नॉट टच. इट मीन्स द 15,000 विच इज एक्स्ट्रा विद अस, it means these are for goodwill account debit. So the main point is, if in the opening entry balancing figure is, if it's there, if both side total is equal, then very good. If balancing figure is there debit side, then goodwill. If balancing figure is there credit side, then capital. Okay, I hope it's clear to you. Now students, these are some more types of transactions which can come in your question in your exam. Cash withdrawn, deposited in bank. कि आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, या फिर अपने बैंक अकाउंट से, या फिर वहाँ से विड्रॉ किया है. सो which entry we will do in these two cases? These are the two cases: cash withdrawn from bank or cash deposited in bank. If suppose you are first entry withdrawn from bank, आप विड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस में, और आपका बैंक बैलेंस जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. सो वन एसेट इज इंक्रीजिंग एंड वन एसेट इज डिक्रीजिंग. तो हम एसेट का ही अगर रूल लगाएं, इफ एसेट्स इंक्रीज देन डेबिट, इफ एसेट्स डिक्रीज देन क्रेडिट. तो कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है? कैश. सो कैश विल बी डेबिट इन दिस केस. विच केस? विड्रॉन केस. Cash account debit, and bank is also an asset for you because bank balance also, जिसमें हम कैश होता है हमारा जो बैंक में डिपॉजिट होता है, ठीक है. तो लेकिन वो एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. सो तक एंट्री विल बी इन विड्रॉन केस कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड द ऑपोजिट एंट्री विल बी इन डिपॉजिटेड केस. वाई? बिकॉज कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश विल कम इन क्रेडिट टू कैश अकाउंट, and bank balance is increasing, so this asset will come in debit, bank account debit.
Fine. Now come to the next entry, 10% depreciation on machinery, rupees 20,000. Student, depreciation is the lack in value of any asset just because of usage. आप कोई एसेट लाए हैं बिजनेस में और उसके यूज से ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ रही है. दैट वर्ड इज कॉल्ड इन अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन. तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे. कितना लगाना है? 10%. सो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस. एक तरह का लॉस होता है बिजनेस के लिए. एंड आई टोल्ड यू ऑल लॉसेस कम्स इन डेबिट. सो फॉर दीज रूल्स डोंट फॉरगेट टू सी पार्ट 1. All losses I told you that comes in debit. So depreciation word will come debit side because it's a kind of loss. Depreciation account debit. Why machinery? Because next thing is machinery. Why machinery will come in credit? Because this value is decreasing. Machinery की value क्या हो रही है? कम हो रही है. If assets decrease then credit. So to machinery account, but the amount will not be 20,000. We are not doing the machinery entry, we are doing depreciation entry जिस पे 10% टैप लगाना है. मतलब 10% उसकी वैल्यू कम हो रही है तो अमाउंट कितना आएगा? 2,000. नाउ दीज 4 एंट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम इन 2 पे आते हैं. दीज आर रिलेटेड टू एक्सपेंस. दीज 2 एंट्री 4th and 5th are related to expense. Before doing this entry I will explain you. These are called outstanding expense and prepaid expense. Outstanding expense क्या होते हैं? मैंने इसके लिए लैंग्वेज भी लिखा है, ड्यू बट नॉट पेड. ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गया. सपोज आपको रेंट देना था जनवरी मंथ का बट आपने नहीं दिया है तो वो ड्यू हो गया है और पेड नहीं हुआ है. ड्यू मतलब उसका टाइम तो आ गया है पे करने का पर आप पे नहीं कर रहे हैं. तो जो चीज़ हमें अब नहीं पे कर रहे हैं, जनवरी में नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ करेंगे या उससे नेक्स्ट मंथ करेंगे, कभी तो करना ही है. और जो चीज़ आपको फ्यूचर में पे करनी है दैट इज लाइबिलिटी. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लियरली कभी लिखा भी होता है एंट्रीज में कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है या कुछ भी है. कभी क्लियरली ना लिख के वो लैंग्वेज भी देते हैं. तो आपको लैंग्वेज से समझना होता है कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री है या प्रीपेड की है. So outstanding expenses are expenses which are due but not paid and prepaid expenses which paid in advance. जो जनवरी का रेंट आपने बहुत पहले ही पे कर दिया था तो उस टाइम वो जब आपने पे किया होगा, सपोज अक्टूबर में कर दिया तो वो उसके लिए अक्टूबर टाइम के लिए वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, एडवांस पेड कहलाएगा. ठीक है. तो मैंने लैंग्वेज भी लिखा है, उसके साथ उनके नाम भी लिखे हैं इसलिए क्योंकि क्लियरली हमेशा क्वेश्चन में नहीं लिखा होता. ठीक है. तो अब उसकी एंट्री क्या करेंगे? मैंने अभी बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, दीज आर लाइबिलिटी फॉर बिजनेस. वाई? बिकॉज यू हैव टू पे इन फ्यूचर. एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज मीन्स क्रेडिट और एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट. तो एंट्री क्या बनती है? आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. तो इस केस में क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. जितना भी आपने पे नहीं किया है 1000. सेम अब यहाँ पे आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस इन विच एट व्हाट टाइम यू हैव पेड इन एडवांस द फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर एक्सपेंस. दैट फॉर दैट टाइम दिस इज एसेट फॉर यू, क्योंकि आपने फ्यूचर का पे कर दिया जिसका पैसा आपको फ्यूचर में पे करना था. एक्स्ट्रा पैसे आपने कहीं लगा दिए तो वो एक टाइप की एसेट होती है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट. और एसेट जब इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है? डेबिट में. तो इसकी नॉर्मल एंट्री जो होगी, स्टैंडर्ड एंट्री, दैट विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. मीन्स द एंट्री विल बी प्रीपेड रेंट. एक्सपेंसेस की जगह क्या आ जाएगा? रेंट. और यहाँ भी रेंट. प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट विद दैट अमाउंट. फाइन. नाउ दीज 2 केसेस आर रिलेटेड टू इनकम ऑल्सो. ऐसे 2 केस इनकम में भी हो सकते हैं. येस. सो व्हाट अबाउट दीज केसेस? दीज केसेस आर इनकम अर्न बट नॉट ड्यू. अर्न तो कर लिया है आपने, इस मंथ का काम कर दिया आपने, जिस मंथ में आप एंट्री कर रहे हैं या जिस सेशन में कर रहे हैं, जो भी है आपका,
उसका आपने वर्क कर दिया है, मतलब अर्न कर लिया है, बट द मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, पैसे रिसीव नहीं हुए हैं उसके, सो दैट टाइप ऑफ इनकम्स आर कॉल्ड अक्रूड इनकम। इन्हें हम क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी लैंग्वेज में? अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। सपोज कमीशन अर्न, आपने कमीशन, डील हो गई आपकी तो कमीशन मिलना चाहिए, डील तो हो गई है बट वो कमीशन आपको बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिला है। सो सपोज कमीशन से ही ले लेते हैं एग्जांपल, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसे रिसीव नहीं हुए आपके। सो इफ नॉट रिसीव बट फ्यूचर में रिसीव होंगे, देने नहीं है, रिसीव करने हैं, तो एसेट है, और एसेट कहाँ आती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट में। तो इसकी स्टैंडर्ड एंट्री होगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और अगर हम कमीशन से करेंगे तो क्या होगी एंट्री? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर? अब इसकी ऑपोजिट कि आपने अभी उसका काम नहीं किया है, जो भी आपकी इनकम आनी थी, रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन पैसे पहले आ गए। सपोज वही कमीशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने डील करा दी है, पैसे डील करानी है, पैसे पहले आ गए, अभी डील फाइनल नहीं हुई है, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने अभी वर्क नहीं किया है लेकिन एडवांस में पैसे आ गए हैं, तो वो आपके लिए तब तक के लिए लायबिलिटी होता है जब तक वो काम नहीं हो जाता कि हमारे पास एडवांस में पैसे आ गए हैं। उसको हम दो नेम से डिनोट करते हैं, अनअक्रूड भी कह सकते हैं और अनअर्न्ड भी कह सकते हैं कि अभी तक अर्न नहीं किया है, सिर्फ पैसे आ गए एडवांस में। तो ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। सिंपल है, सब में ही सेम रूल लग रहे हैं, एसेट्स डेबिट, एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, इनकम आ जाएगा डेबिट में, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम अकाउंट। और अगर कमीशन से करेंगे सो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड कमीशन अकाउंट। सो दीज ऑल आर दी इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा एंट्रीज। मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स जो हम परचेज सेल से अलग करते हैं, जीएसटी से अलग करते हैं। आई होप ऑल द एंट्रीज आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।